Hello, hello, hello. Is it okay? Okay. Good evening, good afternoon to all dear viewers and Visamo Kids Foundation. I am here to share my experiences with Visamo Kids Foundation. My name is Sanjay Patel and I run 2-3 schools in Ahmedabad and Gandhinagar. The main campus, Digavat campus, which is situated at Memnagar. I came to know about Visamo Kids in maybe 2014 or 15 when one lady came to meet me for the admission in 11th Science. And generally I sit with the parents when the parents they come for the admissions. And her name was Nisha Prajapati. Amiben came to meet me, and till 2014 or 15 I didn't know about Visamo Kids Foundation and its activities. Being a teacher, actually I am a mathematics teacher and I have been teaching mathematics since last 20 years. So mathematics teaching is my passion, and to know from which kind of background the students are coming in my school, that is also interesting part for me. So Amiben explained me the activities about Visamo Kids, and I asked many questions to her, how you find the students and all that. I remember that I think I spent more than 20 minutes when Amiben came to meet me. And I was listening very carefully the system, how children get nurtured and what type of objectives they carry consistently. And really, I am very much impressed the way they people are working, the way Visamo Kids people are working. Nisha Prajapati, right now, she belongs to Surat actually. Her parents are not in a position, and Amiben told me that Nisa lives with them at that time since last 10-12 years. I think that you know that to give money for some noble work and consistently and continuously to nurture like a mother is really very different thing rather than giving the just money to a person. Many NGOs I have seen. I am also connected with many NGOs, and I regularly in our school also we follow few basic principles. पैसे देने के लिए तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन the way I think right now I inquired 103 children are right now there in Visamo Kids, and majority students, I was invited by in one function organized by Visamo Kids Foundation maybe after 2 years in 2017 or 18 as a guest, and I have seen the capabilities, the abilities the students they have developed. एक पैसे देके उछेर करना बच्चों का, या तो एक मदर की तरह
जिस तरह से मम्मी अपने बच्चे का अच्छी तरह से संस्कार घर से 10-12 साल, 8 साल, 7 साल दूर रहना पड़े, एंड the people, they nurture the children over there like motherly they treat, homely atmosphere the children are getting. Real, I am surprised to see that kind of activity when I was invited as a guest in one function. शायद एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है इस के बारे में कि एक गांव में मंदिर बनाने का गांव वालों ने सोचा, और ऐसा मंदिर जो शायद आसपास के गांव के अंदर, वो पूरे ज़िले में नहीं हो, ऐसा मंदिर गांव वालों ने बनाने के लिए प्लान किया। एक कमेटी बनाई गांव वालों ने, और कमेटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने तय किया कि एक बाल कृष्ण का मंदिर हम ऐसा बनाएं कि पूरे ज़िले में कहीं नहीं हो। फिर मंदिर की तैयारी वगैरह शुरू की, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने खड़ा किया, और बाद में जब भगवान की मूर्ति रखने की बात आई तो गांव वालों की कमेटी ने सोचा कि क्यों न कुछ हम अलग तरह से करें। मूर्तियाँ भगवान की तो हर एक मंदिर में होती है, तो उन्होंने सोचा कि एक अच्छा सा बाल कृष्ण का पेंटिंग मंदिर के अंदर बना के रखे। तो उन्होंने, कमेटी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने किसी पेंटर को ढूंढा पहले तो कि जो अच्छा एज इट इज़ बाल कृष्ण जैसा फ़ोटो ड्रॉ कर सके। पेंटर ने बोला कि मुझे एक बच्चा ला के दो तो जिसमें कृष्ण का, बाल कृष्ण का हाव भाव दिखाई दे, ऐसा मुझे अगर फीलिंग्स अगर आती है तो मैं उस बच्चे को बाल कृष्ण के रूप में अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकूं। गांव वाले, वैसे भी बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इट इज़ वेरी मच ईजी टू फाइंड आउट द गॉड इन चिल्ड्रन दैट यू नो। गांव वाले गए और किसी बच्चे को पकड़ के लेके आए, पेंटर के सामने रखा। पेंटर ने देखा कि हाँ, इसके अंदर बाल कृष्ण जैसे हाव भाव मुझे दिखाई देते हैं, और मैं थोड़े अपनी रंग वगैरह की मदद से उसमें आबेहूब बाल कृष्ण जैसा मैं पिक्चर शायद बना पाऊँ। तो पेंटर ने बहुत ही अच्छी तरह से बाल कृष्ण की फ़ोटो बनाई, बहुत ही बड़ी सी फ़ोटो बना के मंदिर के अंदर रख दी। फिर कमेटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने सोचा कि बालकृष्ण और कंस, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ऐसा कह सकते हैं। कृष्ण ने एक्चुअली कंस का वध नहीं किया था, लेकिन कंस की जो नीतियाँ थी समाज के लिए, मथुरा के लिए, उसमें से लोगों को कंस की त्रासदी से छुड़ाने के लिए कृष्ण ने कंस का वध किया था। तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए कमेटी वालों ने सोचा कि क्यों ना हम एक बड़ा सा कंस का भी एक पेंटर बना के बाल कृष्ण के फोटो की साइड में रखे। पेंटर को बताया कमेटी वालों ने। पेंटर ने बोला कोई बात नहीं, मैं ड्रॉ कर दूंगा, लेकिन आप एक ऐसा आदमी जिसमें मुझे कंस जैसा भयावन खतरनाक फेस, चेहरा दिखाई दे, ऐसा आदमी लेके आओ, तो मैं थोड़े बहुत मेरे रंग की मदद से मैं कंस का पिक्चर ड्रॉ कर सकूँगा। और फिर तब जाके मंदिर का काम, एक साइड कृष्ण की फ़ोटो, बाल कृष्ण की, एक साइड कंस की फ़ोटो, और मंदिर का काम पूरा होगा और वो इनॉग्रेशन वगैरह सब कर सकते हैं। गांव वाले की जो कमेटी बनाई थी वो गांव में गए और उन्होंने कोशिश की। जिस आदमी को लेके आते थे पेंटर मना कर देता था कि इस आदमी में कंस जैसे हाव भाव नहीं दिखाई देते। फिर तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल बीत गया और मंदिर का ओपनिंग, इनॉग्रल सेरेमनी हो नहीं पा रहा था। बाल कृष्ण की फ़ोटो तैयार थी, मंदिर तैयार था, बाल कृष्ण की फ़ोटो के साथ एक जगह खाली थी जहाँ पर कंस का पिक्चर ड्रॉ करके रखना था, लेकिन समहाउ मंदिर पूरा नहीं हो पा रहा था।
1 साल, 2 साल, 5 साल बीत गए। फिर तो आसपास के गांव के अंदर भी इन लोगों ने, कमेटी वालों ने तपास करना शुरू किया। शायद दूसरे गांव के, दूसरे ज़िले में अगर कोई आदमी मिल जाए, जिसको भी वो लेके आते थे खतरनाक समझ के। पेंटर बोलता था कि इसमें मुझे, अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो मैं शायद सही सही कंस की प्रतिकृति पेंटिंग नहीं बना पाऊँगा। फिर किसी ने सुझाव दिया, बहुत 15-20 साल निकल गए, किसी ने सुझाव दिया कि शायद आप डिस्ट्रिक्ट की जो जेल होती है, प्रिजन्स, जेलों के अंदर जाए और वहाँ पर अगर आपको कोई आदमी मिल जाए तो शायद पेंटर को अच्छा लगे और वो कंस की पिक्चर ड्रॉ कर सके और मंदिर का काम पूरा हो। 20 साल निकल गए। डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जेलों के अंदर गए ये लोग, कमेटी के मेंबर्स, और एक एक करके सब आदमियों को देखा। अंत में एक आदमी उनको लगा कि यहाँ ये आदमी में शायद कंस जैसा दिखाई देता है और पेंटर को अगर वो ड्रॉ करेगा तो ही विल गेट सक्सेस टू ड्रॉ द एग्जैक्ट फेस ऑफ लाइक कंस। लेके आए। उस आदमी को भी पता नहीं था, जेल में जो था उसको, कि क्यों, क्या हो रहा है और क्यों ले जा रहा है। लेके गए मंदिर के, पेंटर मंदिर के अंदर, पेंटर के सामने उसको हाजिर किया। पेंटर ने देखा उसको। पेंटर ने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, मैं शायद ये मुझे दिख रहा है कंस जैसा और मैं उसके पेंटिंग बना दूंगा। उसने पेंटिंग बना दिया। फिर वो आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने पूछा पेंटर को और मंदिर की कमेटी मेंबर्स को कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि आप थोड़ा सब्र करो, आपकी एक बार पेंटिंग हो जाने दो। उसकी पेंटिंग हो गई। पेंटर ने पेंट कर दिया अच्छी तरह से। उसको बताया, मंदिर की कमेटी वालों को बताया। कमेटी वाले खुश हो गए कि चलो मंदिर का सपना पूरा हुआ। 20 साल निकल गए आजकल करके, और बालकृष्ण की और कंस की दोनों की प्रतिकृति तैयार हो गई। उस आदमी को भी बताया कि ये हिस्ट्री समझाई, पूरी की पूरी कहानी समझाई कि ये था और 20 साल पहले हमने ये शुरू किया था। तो जो आदमी जेल में से आया था उसने बताया कि मुझे ज़रा बालकृष्ण की फ़ोटो बताओ। तो मंदिर की कमेटी वालों ने ले गए मंदिर के अंदर एक साइड जहाँ पर बालकृष्ण की फ़ोटो रखी थी, पेंटिंग रखी थी। और वो पेंटिंग देखकर ये जो जेल में से जो आदमी लेके आया था, जिसकी कंस जैसी प्रतिकृति बनाई थी पेंटिंग ने, वो फूट फूट कर रोने लगा बालकृष्ण की फ़ोटो देखकर। मंदिर के कमेटी मेंबर से बोला कि ये क्यों आप रो रहे हो, क्या हो रहा है। उसने बोला कि ये मेरी ही पेंटिंग है। 20 साल पहले मैं इसी गांव में रहता था और आप लोग मुझे कोई लेने के लिए आए थे और पेंटर ने मुझे ये बालकृष्ण की फ़ोटो उस वक्त मेरी ड्रॉ की थी। और हालांकि सही वातावरण, योग्य दिशा, एटमॉस्फेयर मुझे नहीं मिला और मैं अपराध की दुनिया में चला गया और मैं पिछले 5-6 साल से जेल के अंदर मेरी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि the atmosphere, the environment which child gets is very much important. विसामो किड्स के अंदर बच्चे को ढूंढ के लाते हैं ये लोग, and the way they nurture the kids, विसामो किड्स over there, जिस तरह से वो ध्यान रखते हैं। मैंने देखा जब I was invited as a guest in one of the function in after 2 years, maybe 2016 or 17, NID में एक बच्चा कोई जा रहा था, निशा प्रजापति। अगर खुद की मेरी स्कूल की लड़की की बात करूँ तो आफ्टर 1 year she will become the physiotherapy doctor. The credit goes to Visamo Kids, Amiben and all founders and the people who are taking lot of care for these children. बहुत सारे NGO में अंदर मैंने देखा हुआ है कि पैसे देके लोग छूट जाते हैं, लेकिन बच्चा 5th में पढ़ता है, 6th में पढ़ता है, 12th में पढ़ता है, 12th के बाद भी they get the admission in good colleges, NITs, IITs, IIITs, NID, SET। उसकी आज ही मैंने एक वीडियो देखा कि
लड़का तबला बजा रहा था विसामो किड्स का, आई थिंक मैंने फेसबुक पर देखा शायद। व्हाट आई वांट टू टेल कि जिस बच्चे की जो कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से नर्चर करने की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बच्चों को दी जाती है। और उसके लिए आई डोंट नो हाउ मेनी मदर्स आर देयर इन विसामो किड्स फाउंडेशन, लेकिन फैमिली के अंदर अगर एक या दो बच्चे होते हैं, उसके लिए एक मदर होती है, तो यहाँ पर तो 103 मोर देन 100 किड्स आर स्टडिंग। सोचो कि विच काइंड ऑफ पेन दिस विसामो पीपल आर टेकिंग, एंड रियली बिग सैल्यूट टू फाउंडर्स ऑल्सो कि पिछले 20-22 आई थिंक सिंस 2002 this foundation is working for the children, for underprivileged children, and excellent work. Really, I am very happy and I am lucky, and I think that it's good for me कि मैं किसी बच्चे के काम में आया। जब भी it is open offer to अमी मैन कि मेरे लायक अगर कुछ भी काम हो तो they can tell me। हमारा जो लाइफ जो होता है, ये जब अमी बहन जब मुझे बात बता रहे थे ये विसामो किड्स एंड निशा प्रजापति, उसके पेरेंट्स, द वे दे कलेक्ट द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन फ्रॉम द सोसाइटी, एंड आई ऑल्सो आस्क्ड दैट आर द पेरेंट्स अलाउड टू मीट द चिल्ड्रन और नॉट, और आफ्टर विच काइंड ऑफ इंटरवल स्टूडेंट्स दे गो होम। बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, और मैंने देखा कि like I was remembered at that time that they people are working like Mother Teresa. The PT, मेरी आंखें नम हो गई थी जब मम्मी मैंने बात कर रहे थे तब। और 2 साल तक निशा का मैंने भी जितना हो सके उतना ध्यान रखने की मैंने कोशिश की कि वो उसकी इच्छा थी जब निशा आई मेरे पास कि मुझे डॉक्टर बनना है। और अम्मी मैंने भी बोला कि इस लड़की को शायद उसका 9th का 8th का 10th का रिजल्ट देखा होगा और उन्होंने सोचा होगा कि तेरी डॉक्टर बन जाए तो अच्छी बात है। सी इज़ राइट नाउ इन वन ऑफ द गुड कॉलेजेस ऑफ बड़ौदा, एंड इन 2021 सी विल बिकम अ डॉक्टर। सो मुझे लगता है कि अच्छे काम करना, आई थिंक आपको मालूम नहीं होगा शायद कि 4 केमिकल होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए हर कोई के ब्रेन में से ये केमिकल आते रहते हैं। डोपामाइन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है साइकोलॉजिकल। डॉक्टर से अगर आप डिस्कस करते हो, पूछते हो तो बताएंगे आपको। डोपामाइन, एंडोर्फिन, सर्टोनिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये 4 केमिकल हर कोई आदमी के ब्रेन में होते रहते हैं। डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटीज़ ये केमिकल, ये जो रसायन ब्रेन में से निकलते हैं। हमारा जो बॉडी होता है उसको अच्छा रखने के लिए हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में से एंडोर्फिन नाम का केमिकल निकलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट केमिकल वी फील, हमें लगता है कि वी फील हैप्पीनेस। फिर दूसरा जो डोपामाइन है, वो जब हम किसी चीज़ की चाहत रखते हैं फिजिकल, और अगर हम विद इन शॉर्ट टाइम इफ वी गेट दैट थिंग, then automatically dopamine chemical releases from our brain. जो थर्ड जो है वो सर्टोनिन। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विसामो किड्स के जो लोग काम करते हैं लाइक अमी बहन एंड ऑल अदर्स, उनके ब्रेन में से मैक्सिमम सर्टोनिन केमिकल रिलीज होता होगा। सर्टोनिन केमिकल कब रिलीज होता है? जब अगर हम ऐसा कुछ काम करें जिससे दूसरों को लाभ हो। ये बच्चों को पढ़ाना, बच्चे के लिए पैसे की अरेंजमेंट करना, बच्चे के लिए अच्छी स्कूल ढूंढना, बच्चे को जिस स्किल
में इंटरेस्ट हो, वो स्किल की अपॉर्चुनिटी के लिए सही एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और उसके रिलेटेड कोचिंग प्रोवाइड करना. Even after school also, whatever the dreams the children they are seeing, the Visamo Kids people, they are trying to fulfill their dreams. और खुद का स्वार्थ नहीं रख के जब दूसरों को जब हेल्पफुल हम होते हैं तो हमारे ब्रेन में से ऑटोमेटिकली सर्टोनिन का लेवल इंक्रीज होता है और सर्टोनिन नाम का जो केमिकल है वो हमारे ब्रेन में से निकलता है. सो दैट्स वाई मुझे ये याद आया. और जो फोर्थ जो है वो ऑक्सीटोसिन ये जो है वो व्हेन वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ और when we get closer to one person, when we develop the friendship with the children or with anyone, then when we become social, then automatically oxytocin नाम का जो केमिकल होता है वो हमारे ब्रेन में से निकलता है. तो ये जो 4 जो मैंने केमिकल बताए उसमें से सर्टोनिन नाम के केमिकल का लेवल विसामो किड्स के बच्चों के लिए जो भी लोग वहाँ पर काम करते हैं उनके ब्रेन में से, आई एम रियली श्योर कि उनके ब्रेन में से ये केमिकल ज़्यादा मात्रा में निकलता होगा. क्यों? क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि किसी को खुश देखना. निशा प्रजापति का केस ले लो, उसकी लाइफ में उसने जो सपने देखे थे निशा प्रजापति ने वो पूरे करने के लिए 2 साल तक इन लोगों ने मेहनत की. सही एटमॉस्फेयर, सही कोचिंग, सही स्कूल, किताबें, डिसेंट डिसिप्लिन वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं था 2 साल तक. और मैंने देखा है कि वहाँ पर द वे एक बच्चा था, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन एक लड़का था जो NID के डिज़ाइनिंग फिल्म बहुत अच्छा कर रहा था. एंड एट दैट टाइम ही सिलेक्टेड इन द NID इन डिज़ाइनिंग फील्ड. ऐसा कोई वहाँ पर एंकर था, वो मुझे बता रहा था. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें खुशी मिलती है. और इट्स माई ओपन ऑफर टू विसामो किड्स फाउंडेशन, इफ आई कैन डू समथिंग फॉर विसामो किड्स फाउंडेशन एज वेल एज विसामो किड्स ऑल्सो, then really I will be very happy in near future. एक्टिविटी मैंने बहुत सारी NGO की देखी है, लेकिन 2 साल या 5 साल के बच्चे को लेकर 15, 18, 20 साल के बच्चे तक जो उनका कंप्लीट नर्चरमेंट जो ये लोग करते हैं, रियली इट इज़ अ बिग सैल्यूट. और मुझे उम्मीद है कि ये जो बच्चे यहाँ से निकले हैं, थोड़े बहुत निकल गए होंगे, शायद थोड़े बहुत निकलेंगे. आज मैंने पूछा अमी बहन से, मोर देन 100 चिल्ड्रन आर नर्चरिंग टेकिंग ओवर देयर. सो ये जो बच्चे समाज में और कहीं ना कहीं ये समाज में जाएंगे तो ये बच्चे किसी और को भी हेल्प करेंगे. एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे. हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमैनिटी दैट इज़ द ग्रेट थिंग, ग्रेट सर्विस टू मैनकाइंड. और इसी दिशा में ये लोग जो काम करते हैं ये बहुत ही अच्छा काम है. एक मेरी ऐसी भी इच्छा है कि जो CFTI है, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 15-17 IITs है, मोर देन 19 ट्रिपल IITs है. ट्रिपल IITs मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IISER, नाइजर, NITs, IISc बेंगलोर, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं. अगर इसी
CFTI में से एकाध संस्था में भी अगर विसामो किड्स का बच्चा एडमिशन लेके आगे बढ़ता है तो आई थिंक दैट डे विल बी द एक्सलेंट डे फॉर द नेशन कि एक बच्चा किस तरह से नर्चर होके इस लेवल पर जा सकता है। वो एक संस्था की 20, 22, 25 साल की मेहनत इसके लिए लगती है। आई होप कि विसामो किड्स फाउंडेशन के जो बच्चे अभी जो काम करते हैं वो अलग अलग संस्था में अलग अलग लेवल पर ये अच्छी तरह से काम करें और समाज में आगे जाके यही बच्चे दूसरे बच्चों को भी हेल्प करें। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मुझे लगता है कि ऐसी संस्थाएं, विसामो किड्स जैसी संस्थाएं होनी चाहिए जो समाज में अच्छी तरह से काम कर सके। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग विसामो के साथ जुड़े हुए हैं और उनका खुद का एक्सपीरियंस जिस तरह से द पीपल आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस विद विसामो किड्स, रियली आई एम वेरी हैप्पी and I wish all the best to Visamo Kids Foundation as well as all the students, all the children, those who have passed from Visamo Kids. Special congratulations and thanks to Nisha Prajapati and Ami Ben also. मुझे लगता है कि निशा 2021 के बाद गुजरात की या तो इंडिया की सेवा के लिए एज अ फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर से विल कम फॉरवर्ड। और ये काम जो आज ये लोग कर रहे हैं सेवा का, यही काम वो आगे भी दूसरे बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगी। मुझे खुशी है कि अमी बहन, उन्मेष दीक्षित और विसामो किड्स फाउंडेशन ने मुझे ठीक समझा कि आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद विसामो किड्स और इन फ्यूचर ऑल्सो इफ आई कैन डू समथिंग for this kind of children, then I will be very happy. Thank you very much. Thank you Visamo Kids and thank you all dear viewers and students. Thank you.